प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। भौतिक भूगोल में अभी से पूर्व पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत हमने जो दैनिक गति थी अर्थात घूर्णन या परिभ्रमण उसके विषय में जाना, और पृथ्वी की दूसरी गति जो वार्षिक गति है परिक्रमण, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। Earlier chapter we had known about the movement of the earth. Under that we discussed rotation, that is the diurnal or the daily movement of the earth, and today's topic is about the annual movement of the earth, that is revolution of the earth around the sun. पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूर्ण करती है। इस अवधि को वर्ष के नाम से जाना जाता है। Along with the rotation on its own axis, the earth also takes one complete revolution around the sun. And this duration of one complete revolution is so called a year. परिक्रमण से संबंधित तथ्य। Now let's have a look about the various facts that are related to the revolution of the earth. पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग वृत्त की अपेक्षा अंडाकार है। The orbit on which the earth revolves around the sun, that is the path of the revolution of earth, is not circular, rather it is somewhat egg-like, it is oblate in shape. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 एक चौथाई दिनों में पूर्ण करती है, जो वस्तुतः 365 दिन 48 मिनट तथा 45.68 सेकंड की अवधि है। द अर्थ कंप्लीट वन full revolution around the sun in 365 days approximately, which is in fact 365 days 48 minutes and 45.68 second duration. एक पूर्ण परिक्रमण एक वर्ष कहलाता है। It has already been said that one complete revolution of the earth around the sun is so called a year. प्रति चौथे वर्ष में एक दिन की वृद्धि अर्थात 366 दिन का वर्ष, जिसे कि सामान्यतः लीप ईयर या अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। As it is already said that approximate duration of Earth's revolution around the sun is 365 1/4 day. So this 1/4 day is covered up after every 3 years, that is in the 4th year, and this means that particular year possesses 366 days, which is so called leap year, in which February, obviously it is February, having one day added to the month, और इसमें फरवरी माह में वो दिन जुड़ जाता है। पृथ्वी का परिक्रमण पथ कक्षा जो सदैव समान ही रहता है। The orbit on which the earth revolves around the sun always remains constant. It does not change, it remains constant. पृथ्वी अपनी कक्षा पर घड़ी सुई की विपरीत दिशा में सूर्य का परिक्रमण करती है। As the earth rotates from west to east, that is again in the anti-clockwise direction, so is the revolution also that of the earth, that in anti-clockwise direction it revolves around the sun. पृथ्वी कक्षा की लंबाई 580 मिलियन मील है। अतः इसकी गति का यदि आकलन किया जाए तो यह 66,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार हुई। द लेंथ ऑफ द ऑर्बिट that of the earth on which the earth revolves around the sun, the length accounts to 580 million miles. This means the speed, if speed is calculated, we know that revolution is complete in 365 1/4 day,
and the distance is that of 580 million miles, that of the orbit. So if the rate of revolution is calculated, it comes to 66,000 miles per hour, अथवा दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं 18.5 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से. सो इफ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर, इट इज 66,000 miles per hour, and in terms of second it accounts to 18.5 miles per second. अंडाकार कक्षा में पृथ्वी व सूर्य की दूरी के मध्य परिवर्तन रहता है. इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, the distance of the earth from the sun is calculated because the orbit is not circular, it is oblate, somewhat egg-like. Therefore, the distance between the sun and the earth varies. न्यूनतम जो दूरी रहती है परिक्रमण के दौरान पृथ्वी की, वो 915 लाख मील होती है, जिसे कि उपसौरिका के नाम से कहते हैं. द minimum distance of the earth while revolving around the sun is that of 915 lakh miles, which is also known as aphelion. तो ये जो है perihelion, peri means close and helion is this perihelion term is derived from the Greek word where peri means close and helios means sun. That is the closest distance of earth from the sun, which is 915 lakh miles from the sun. तो न्यूनतम जो ये 915 लाख मील की जो दूरी है, इसको उपसौरिका कहते हैं. उप का मतलब होता है निकट और सौरिका मतलब सूर्य के निकट. एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज aphelion. Ap is again, this is the Greek term, as it is already said. Ap means away and helios is the sun. So the maximum distance while the earth is revolving around the sun, the maximum distance between the two, sun and the earth, is 945 lakh miles, which is known as aphelion. This means away from the sun. तो इसे अपसौरिका के नाम से जाना जाता है. अब बात करते हैं परिक्रमण के प्रभाव के बारे में. जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही होती है, तो कई सारी प्रभाव हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं. उनके विषय में इन बिंदुओं के तहत जानते हैं. अयन वृत्त का निर्धारण. सो इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रॉपिक्स. पृथ्वी अक्ष के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण, क्योंकि अक्ष से जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री का है और कक्षा तल से झुकाव 66.5 डिग्री का है, जो हमने पूर्व में जाना. तो अक्ष के झुकाव के कारण सूर्य सापेक्ष स्थिति परिवर्तन जो परिक्रमण काल में होता है, तो उसमें स्थिति का परिवर्तन होता है. देयर इज़ अ कंटिन्यूअस चेंज because over the earth when it is rotating revolving around the sun, only because the inclination of the axis at 23.5 degree. This means there are changes that of the sunlight on the earth. सूर्य की लंबवत किरणें के भाग जो होते हैं, सामान्यतः जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही होती है, तो सूर्य की लंबवत किरणें 2 दशाएं ऐसी होती हैं 21 जून और 22 दिसंबर की, जब एक बार सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर गिरती है और दूसरी बार 22 दिसंबर के समय सूर्य की सीधी किरणें जो प्रत्यक्ष किरणें होती हैं वो 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पड़ रही होती है. और इसी आधार पर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसे
कर्क रेखा का नाम दिया गया, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से पुकारा गया है. सो इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रॉपिक्स बिकॉज द अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23.5 degree from the axial plane. So while it is revolving around the sun, twice it happens as such that the direct rays of the sun either fall over 23.5 degree north latitude or over 23.5 degree south latitude. So on that basis, 23.5 degree north latitude is given the name of Tropic of Cancer, whereas 23.5 degrees south of equator is given the name of Tropic of Capricorn. So this is how the two tropics are decided on the basis of revolution of the earth. दूसरा है ध्रुवीय वृत्त निर्धारण. वापस हम यही बात करें झुकाव की दृष्टि से, तो ये तो हमने अनुभव किया कि सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें जब ये 21 जून में पड़ रही होती हैं कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें जो मकर रेखा पर पड़ती हैं, उसी स्थिति में ऐसा होता है कि 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर जो से परे जो स्थान होते हैं वहाँ 24 घंटे की रात्रि और दिन का अनुभव किया जाता है. और उसके ठीक विपरीत जब 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी प्रत्यक्ष किरणें मकर रेखा पर पड़ रही होती हैं, तो स्थिति ये होती है कि 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से, दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से परे दिन और रात कुल मिलाकर के 24 घंटे का अनुभव किया जाता है. तो इसी दृष्टि से 66.5 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हैं उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं. 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को एंटार्क्टिक वृत्त या एंटार्क्टिक रेखा के नाम से पुकारा गया. अगेन द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोलर सब ट्रॉपिक्स, that is only because of this inclination of the earth when the direct rays of the sun are falling over Tropic of Cancer, that is on 21st June. What happens is that beyond 66.5 degree north, the area experiences 24 hours of the night duration, 24 hours of day. While when the direct rays of the sun fall over Tropic of Capricorn, that is on 22nd December, the area beyond 66.5 degree circle experiences 24 hours day. So on this basis, on the basis of the duration of 24 hours, either days or night, the northern 66.5 degree latitude is given the name of Arctic Circle, and 66.5 degree latitude is given the name of Antarctic Circle. So as it is discussed about the tropics and the subtropics, तो जो अयन वृत्त और ध्रुवीय वृत्त की जो बात है, यही 5 रेखाएं, एक रेखा जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है. तो इस विषुवत रेखा इन अयन वृत्तों यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और ध्रुवीय वृत्तों आर्कटिक वृत्त और एंटार्क्टिक वृत्त के आधार पर ही पृथ्वी के भिन्न भागों को जलवायु कटिबंध में बांटा गया है. सो ऑन द बेसिस ऑफ these curves or these circles of tropics and subtropics, that is the Tropic of Cancer, Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, and the imaginary line that runs through the center of the earth, that is equator. On the basis of these 5 lines of latitudes, the whole world is classified into climate zones. So this is how this is one of the important consequence of revolution of the earth around the sun.
मध्याह्न काल में सूर्य की ऊंचाई में अंतर. So, because of the revolution of the earth, as it is said, once the direct rays of the sun fall over Tropic of Cancer, and the other time the direct rays are falling over Tropic of Capricorn. So is the case that the height of the sun is experienced different during the different period of one complete revolution. तो यही कारण है कि हमने ये चर्चा की कि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं, जबकि 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी रेखा सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो मकर रेखा पर गिरती हैं. तो इसी लिहाज से यह स्पष्ट हो जाती है बात कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही होती है तो इन भिन्न भिन्न अवधियों में जो सूर्य की ऊंचाई में अंतर स्पष्ट हो जाता है. चौथा बिंदु, दिन व रात्रि की लंबाई में अंतर. द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट. दिस अगेन हैपन्स बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन as well as rotation movement of the earth. Because the earth is inclined while it is revolving around the earth, around the sun, when the direct rays of the sun are falling over Tropic of Cancer, that is the northern hemisphere, the length of the days in the northern hemisphere is greater than the nights. And whereas when the direct rays of the sun fall over Tropic of Capricorn, that is on 22nd December, the length of the days are lesser in the northern hemisphere and they are greater in the southern hemisphere. This we'll have a look in the next slide, in the diagram given in the next slide. तो दिन और रात्रि की लंबाई में अंतर जो है, क्योंकि पृथ्वी झुकाव के साथ साथ अपने अक्ष के झुकाव के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, तो उसी के परिणाम स्वरूप जब सूर्य की जहाँ जहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं उस लिहाज से जो दिन और रात्रि की लंबाई में भी अंतर देखने को मिलता है. 21 जून को जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं उस समय पर वहाँ ग्रीष्म काल हो जाता है और जो दिन की लंबाई यहाँ अधिक होती है इस अवधि में और रात्रि अपेक्षाकृत छोटी होती हैं. इसके ठीक विपरीत 22 दिसंबर को जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ रही होती हैं तो वही स्थिति कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही होती हैं प्रत्यक्ष किरणें, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई अधिक और रात्रिकालीन अवधि जो है वो छोटी हो जाती है. पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है परिक्रमण का ऋतु परिवर्तन. जो पूरे वर्ष में ऋतुओं का परिवर्तन देखने को मिलता है उसका मूल कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना. और ये जो ऋतु परिवर्तन जो है ये निश्चित रूप से सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मा है, जो तापमान है, उसके आधार पर ही ऋतुओं का निर्धारण होता है. When the earth is revolving around the sun, on the basis of amount of heat, sun's heat received by the earth in different parts of the year, in different duration of one complete year, different seasons are observed. Different seasons are given the name on the basis of heat received from the sun. 21 जून को सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो इस अवधि में जो तापमान की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, अतः उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है. ऑन 21 जून, because of the direct rays falling over Tropic of Cancer, which lies in the northern hemisphere, therefore, due to maximum heat, this period is given the name of summer season, and this season at this time is experienced in the northern hemisphere. 22 दिसंबर को सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पड़ती हैं, अतः यहाँ पर शीत उत्तरी गोलार्ध में इस अवधि में शीत ऋतु, और क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं
तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है. सो बिकॉज इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, देयरफॉर when we are talking about the revolution of the earth around the sun, we'll talk about the various season at different period prevailing in the northern hemisphere. So on 21st June summer season prevails, whereas on 22nd December, when the direct rays of the sun fall over tropic of Cancer, at this time in the northern hemisphere winter season is experienced. So in between this 1st June and 22nd December, the at an interval of 3 months each, because there are 12 months and 4 seasons. So at the interval of 3 months different seasons are observed. अब 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करें, यानी कि क्योंकि 12 माह है और 4 मौसम की स्थिति उत्पन्न होती है पृथ्वी के परिक्रमण से, तो 23 सितंबर एक ऐसा समय है जब सूर्य की सीधी किरणें जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा पर पड़ रही होती है. तो इस समय पर क्या है, इस समय पर पतझड़ ऋतु, तो पतझड़ ऋतु का आगमन होता है. और जब फिर ये 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, और उसके बाद में 21 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, फिर तीसरा माह लें तो 21 मार्च को यहाँ सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध से होती हुई विषुवत रेखा पर ही पड़ती हैं. तो यहाँ स्थिति में जो दिन और रात्रि की अवधि तो समान ही रहती है, और इस समय पर जो वसंत ऋतु का आगमन उत्तरी गोलार्ध में होता है. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, ये एक बहुत बड़ा प्रभाव था परिक्रमण का कि ऋतु परिवर्तन, जिसके विषय में हमने जाना. नेक्स्ट स्लाइड में एक हम अवलोकन करते हैं इस चित्र पर. ये जो स्लाइड में जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताने का प्रयास किया गया है जो परिक्रमण के हमने प्रभाव के विषय में अभी चर्चा की, उसको हम एक बार देखते हैं. तो इसमें ये सूर्य है मध्य में, और 4 दशाओं में ये परिक्रमण करती हुई पृथ्वी दिखाई गई है. ये जो एरो, जो संकेत दिया हुआ है एरो का, ये बता रहा है कि किस तरह से जो पृथ्वी का परिक्रमण है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में सूर्य के चारों ओर हो रहा है. दीज एरोज आर इंडिकेटिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन व्हेन इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन. And in this the vertical line along which ये इसमें जो ये उ ध्रुव और द ध्रुव दे रखा है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति दे रखी है. अब हम शुरू से चलते हैं इसमें कि ये ए वाले का देखें, हमने 4 पृथ्वी की परिक्रमण करती हुई पृथ्वी को 4 दिशाओं, 4 स्थितियों में बताया है ABCD के माध्यम से. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ए डायग्राम. व्हेन द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आर फॉलिंग ओवर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड विच इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो इसमें ये देखें, और ये गहरी गहरी लाइन से स्पष्ट होता है क्योंकि पृथ्वी डायग्राम जो दिया हुआ है इसमें कुछ छायांकित भाग है जो कि रात्रि को बता रहा है, विच इज़ एक्सप्रेसिंग नाइट आवर्स, whereas the lighted portion is explaining about the day condition. अब इसमें 21 जून की ये जो स्थिति है, इसमें जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं तो उजाले में जो अक्षांशों की लंबाई अधिक है, जो इस बात को व्यक्त करती है कि उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ है तो दिन की लंबाई जो है वो अपेक्षाकृत अधिक है. और जो अयन वृत्त
और जो हमने ध्रुवीय वृत्त के विषय में कहा था, ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 0 है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एंटार्क्टिक वृत्त दे रखा है। तो ये पूरा के पूरा 21 जून की स्थिति, जबकि ये सूर्य की क्या स्थिति रहती है, सूर्य सबसे ऊंचा होता है कर्क रेखा पर इस अवधि में, और अन्य क्षेत्रों में सूर्य की ऊंचाई में भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये इस डायग्राम से ये स्पष्ट होता है 21 जून में जो ग्रीष्म की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। अब हम चलते हैं इसमें बी वाली स्थिति में। अब सूर्य की सीधी किरणें यदि देखें तो विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, तो मतलब एक ये बात, इससे पूर्व में जो हमने कहा कि दिन और रात्रि की लंबाई में अंतर होता है, तो ऐसी अवधि जब दिन और रात्रि की लंबाई में अंतर हो उसे संक्रांति के नाम से पुकारा जाता है। इट इज़ नोन एज सॉल्स्टिस। वील बी लर्निंग अबाउट दिस इन द नेक्स्ट chapter, where we'll discuss at length about the season, formation of the season due to revolution of the earth around the sun. अगले अध्याय में हम जानेंगे विस्तार से सारी ऋतुओं के विषय में। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें यहाँ भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं, तो क्योंकि इस अवधि में ये जो स्थिति दे रखी है, ये दे रखी है 23 सितंबर की, जबकि पतझड़ ऋतु हो रही होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ पड़ रही हैं। क्योंकि सूर्य से विमुख वाला हिस्सा हमारी तरफ है, इसलिए पूरा छायांकित है, मतलब ये वाला भाग, आधा भाग तो रात्रि का अनुभव कर रहा है, और उसके विपरीत जो सूर्य के सम्मुख भाग है वो सूर्य प्रकाश यानी कि दिन का अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पर दिन और रात्रि की लंबाई में कोई फेर नहीं होता है, लगभग बराबर होती हैं 23 सितंबर की स्थिति। फिर हम सी की तरफ चलते हैं। यहाँ ये सूर्य की जो सीधी किरणें हैं मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी अक्षांश पर पड़ रही है। इस अवधि में वापस से हम इसका अवलोकन करेंगे। डार्क जो किया हुआ है, दिस डार्क पोर्शन इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द नाइट आवर्स, whereas the light portion explains, it depicts the daytime. Now again, the length of the day is, if observed in the northern hemisphere, this length is lesser. The lighted portion in the northern hemisphere is lesser. This means winter season is prevailing in the northern hemisphere. तो ये उत्तरी गोलार्ध में इस अवधि में शीतकाल का अनुभव हो रहा है। और इस शीतकाल में हम ये गहरा और हल्का वाला क्षेत्र देखें तो गहरे वाले क्षेत्र में जो अक्षांशों की लंबाई जो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री का हम देखें उत्तरी गोलार्ध में, तो मतलब यहाँ पर रात्रि की लंबाई अधिक और दिन की लंबाई कम होती है, क्योंकि डार्क लाइन से इस चित्र में दिन की लंबाई को दिखाने का प्रयास किया गया है। So this is what happens on the 22nd December, and at this time you can very well observe that the place beyond 66.5 degree north in the northern hemisphere, it is absolutely dark. This means at this time 24 hours night is experienced in the northern hemisphere beyond 66.5 degree latitude. तो ये 66.5 डिग्री से ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर जो उत्तरी गोलार्ध में सारा काला हिस्सा है, इसका मतलब इस अवधि में 24 घंटे की रात्रि का अनुभव किया जाता है, जो कि हमने अभी परिक्रमण के प्रभाव के विषय में जाना। अब हम इसी में आगे चलते हैं। 21 मार्च की स्थिति डी वाले चित्र में वही वाली स्थितियाँ, पृथ्वी के सारे अक्षांश जो अयन वृत्त और ध्रुवीय वृत्त को इनमें डिग्री से अंकन किया हुआ है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव किया हुआ है। इस अवधि में सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर ही पड़ रही होती हैं प्रत्यक्षतः, लेकिन वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ से पड़ रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में दिन और रात्रि की लंबाई समान होती है और इस समय वसंत ऋतु का आगमन
पृथ्वी पर होता है। तो यही सारी चीज़ें इस डायग्राम में स्पष्ट की गई हैं ABCD में कि कौन सी रेखा पर सूर्य की कैसी किरणें पड़ रही हैं, कौन सी ऋतु का आगमन हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में स्वाभाविक है, हम अपने भारत के संदर्भ में बात करते हैं, और दिन की लंबाई बताई हुई है। इसके साथ साथ में वो कौन सी समय है, वो कौन सी अवधि है वर्ष की जबकि सूर्य की किरणों का प्रभाव इन पृथ्वी परिक्रमण करती हुई पृथ्वी के चारों चित्रों में दिखाया गया है।